friends, I welcome you all to my channel. My name is Ratika Gupta, and guys, topic for today is Section 128 of the Indian Contract Act 1872, which deals with nature of surety's liability. Guys, हम contract of guarantee concept को read कर रहे हैं under special contracts. I have already completed contract of indemnity, which is dealing with Section 124 and 125 of the Indian Contract Act. And I have already uploaded videos on Section 126 and 127 also, which deals with the contract of guarantee, concept of contract of guarantee. In Section 126, I have made you, understand and made you familiar with what is meant by contract of guarantee with a beautiful diagrammatic representation. Section 127 deals with essentials for a valid contract of guarantee. As I have told you that not every contract of guarantee is valid under law. There are certainly certain valid essentials which are to be fulfilled, and today I'm here with Section 128, which deals with nature of surety's liability. Before you watch this video, I hope you are very well aware of contract of guarantee and the meaning of surety. Who is surety basically in a contract of guarantee? आपको पता होना ज़रूरी है. Surety is one of the three parties to the contract of guarantee. So you have to watch my previous videos on Section 126 and 127, and then you can watch this video. So guys, beginning with Section 128, हम read करेंगे nature of surety's liability. Contract Act का जो बेयर एक्ट है बेसिकली उसमें सिंपली लिखा है कि what is the nature of surety's liability. Section 128 clearly says that surety's liability is coextensive with that of principal debtor until and unless it is otherwise provided by the contract. अब आपको इसका मीनिंग में सेक्शन 128 में सिर्फ हमने दो ही वर्ड्स को समझना है गाइस, विच इज लाइबिलिटी एंड कोएक्सटेंसिव. प्रिंसिपल डेटर आई होप आपको पता है कौन होता है, इसीलिए सेक्शन 128 में सिर्फ हम दो वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. तो जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी होती है वही लाइबिलिटी होगी, इक्विवेलेंट लाइबिलिटी होगी श्योरिटी की. इट इज कोएक्सटेंसिव. कोएक्सटेंसिव का मतलब होता है इट इज इक्विवेलेंट, इट इज नीदर मोर नॉर लेस, यानी कि श्योरिटीज लाइबिलिटी इज नीदर मोर नॉर लेस दैन द लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. इनकी लाइबिलिटी इक्विवेलेंट होती है, इक्वल फुटिंग पे होते हैं. जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होगी अंडर एनी सर्कमस्टेंस वही लाइबिलिटी श्योरिटी की होगी. बट गाइज अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि लाइबिलिटी का क्या मतलब है. लाइबिलिटी का मतलब है सेक्शन 128 में वो लाइबिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस which are existing and enforceable by the court of law. In my previous video on section 127 जहाँ पे हमने डिस्कस किया था essentials of a valid contract of guarantee, I've told you कि one of the most important point for an essential element of contract of guarantee is that principal debt must be in existence and it must be enforceable by the court of law. It means principal debt और principal liability जो होती है it must be enforceable by the court of law. मैंने आपको illustration दी थी कि जो time barred debt होती है, time barred debt is a debt which is barred by law of limitation. उसके निकल जाने के बाद contractual rights and obligations they come to an end. तो अगर आप यहाँ पे वही इलस्ट्रेशन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू पीपल, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कुछ गुड्स ऑन क्रेडिट दिया या कुछ लोन दिया. 1 साल निकल चुका है, 2 साल निकल चुके, 3 years हैव बीन एक्सपायर्ड, और उस 3 साल में ना तो प्रिंसिपल डेटर ने उन गुड्स को वापस किया या उस लोन को वापस किया, एज द केस में भी, और ना ही क्रेडिटर ने 3 साल में प्रिंसिपल डेटर को स्यू किया, कोर्ट ऑफ लॉ वो नहीं गया और उसने अपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं उसको एनफोर्स नहीं करवाया कोर्ट की हेल्प से. ना सिंस टाइम हैज़ बीन बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, 3 साल के बाद अब ना तो क्रेडिटर कोर्ट में जाके उससे पैसे क्लेम कर सकता है और ना ही प्रिंसिपल डेटर की कोई भी लाइबिलिटी है या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो अब उसको जो है वो जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो वापस करे. यानी कि इनके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस they have come to an end because time has been barred by the law of limitation. अब इसी सिचुएशन में 3 साल के बाद अगर क्रेडिटर श्योरिटी के पास जाता है, क्रेडिटर इज वेरी वेल अवेयर, उसको पता है कि अब लॉ ऑफ लिमिटेशन है, टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड, 3 years हैव बीन एक्सपायर्ड, ना आई कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, मैं श्योरिटी से पैसा क्लेम करता हूँ. अब देखा जाए तो अगर वो प्रिंसिपल डेटर से पैसा नहीं क्लेम कर सकता, इफ क्रेडिटर इज नॉट एबल, ही इज नॉट एंटाइटल्ड, बेसिकली इज नॉट लॉफुली एंटाइटल्ड, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन हैज़ बीन एक्सपायर्ड, टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड. अब आपको बताएं कि अगर यहाँ पे 3 साल के बाद प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं बनती है तो नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर श्योरिटी की लाइबिलिटी, अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं बनती तो श्योरिटी की भी लाइबिलिटी नहीं बनेगी. जहाँ जहाँ प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है और जब तक प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है उसी तरीके से
co-extensive equivalent surety की liability है to that of principal debtor. Now time has been barred by law of limitation. 3 साल के बाद क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से पैसा क्लेम नहीं कर सकता, इवन वो कोर्ट में भी जाके क्लेम नहीं कर सकता. उसका रीज़न आपको पता है. अब अगर वो प्रिंसिपल डेटर से क्लेम नहीं कर सकता, देन सर्टनली गाइज वो श्योरिटी से भी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम यहाँ पे कहेंगे कि श्योरिटी की भी लाइबिलिटी हैज़ कम टू एन एंड, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी हैज़ कम टू एन एंड, इट हैज़ सीज्ड. तो जब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी कमेंस होती है उसी टाइम पे हमारे फेवर्ड डेटर की, इट मीन्स उसी टाइम पे हमारे श्योरिटी की लाइबिलिटी कमेंस होती है, एंड एज सुन एज प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी सीजेज, उसी टाइम पे देन एंड देयर श्योरिटी की लाइबिलिटी सीज हो जाती है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी? इट इज इक्विवेलेंट, इट इज कोएक्सटेंसिव टू दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर्स लाइबिलिटी. आई होप आपको समझ आ चुका है. एंड इन द इवेंट अगर श्योरिटी ने पैसा दे दिया, यानी कि अगर श्योरिटी ने जो अमाउंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर, 3 साल निकल चुके हैं, क्रेडिटर ने श्योरिटी से पैसा मांगा, श्योरिटी ने दे दिया, देन श्योरिटी कैन नॉट क्लेम इट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि श्योरिटी कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग. गलती उसकी है. लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि 3 साल का टाइम पीरियड होता है. 3 years हैव बीन एक्सपायर्ड. गलती किसकी थी? क्रेडिटर की. उसको 3 साल के विद इन कोर्ट में जाना चाहिए था, बट ही फेल्ड, ही डिफॉल्टेड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन. तो यहाँ पे अगर श्योरिटी क्रेडिटर को पैसा दे देगा तो श्योरिटी कोर्ट में जाके अपने प्रिंसिपल डेटर से पैसा नहीं ले सकता. कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा कि आपकी लाइबिलिटी इज नॉन एनफोर्सिएबल, यानी कि जो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं दे हैव कम टू एन एंड. तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी, कुछ ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो एग्जिस्टिंग होती हैं एंड एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, वही लाइबिलिटी की हम बात करते हैं. ऐसी लाइबिलिटी जो एग्जिस्ट अब नहीं करती है, इट हैज़ कम टू एन एंड एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, उस लाइबिलिटी की हम बात नहीं करते हैं. उसकी इलस्ट्रेशन मैं आपको दे चुकी हूँ. टाइम बार्ड डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस दैट इज नॉन एग्जिस्टेंट नाउ. अब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इट हैज़ सीज्ड, क्योंकि टाइम हैज़ बिन बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड हेंस कोर्ट्स कैन नॉट ऑल्सो इंटरफेयर. वो भी इंटरवीन नहीं कर सकते. इट हैज़ बिकम नॉन एनफोर्सिएबल. तो लाइबिलिटी का यहाँ पे मतलब है वो लाइबिलिटी विच इज एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. तो सिर्फ हम उसी लाइबिलिटी की बात करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो सेक्शन 128 का है, वो है कोएक्सटेंसिव. गाइस कोएक्सटेंसिव का मीनिंग मैं आपको जनरल मीनिंग बता चुकी हूँ कि कोएक्सटेंसिव का मतलब होता है इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली द सेम. लेकिन इसके अंदर सेक्शन 128 में कोएक्सटेंसिव को हम और डीपली इंटरप्रेट करते हैं. उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, विच इज कोएक्सटेंसिव का मतलब होता है कि लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर इज जॉइंट एंड सेवरल. जॉइंट एंड सेवरल बहुत बार हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस किया है. जॉइंट एंड सेवरल का मतलब होता है कि दो लोगों की लाइबिलिटी जॉइंट भी होती है लेकिन सेवरल भी हो सकती है. इट मीन्स इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, गाइस इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड एंड इट्स अ जनरल पॉइंट. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये श्योरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी इनटू द पिक्चर तभी आएगा जब क्या होगा? डिफॉल्ट होगा ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल डेटर इज अ प्रिंसिपल डेटर, उसकी डेट प्रिंसिपल है तो उसकी प्रिंसिपल लाइबिलिटी बनेगी. एंड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी जो हमारा फेवर्ड डेटर है, ही विल स्टेप इनटू द पिक्चर. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड बिफोर क्रेडिटर हैज कॉन्फर्ड एनी बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेटर. इसके पहले उसको कोई बेनिफिट देता प्रिंसिपल डेटर को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज ऑलरेडी कम इनटू एग्जिस्टेंस. बट श्योरिटी पिक्चर में सिर्फ तभी आएगा जब डिफॉल्ट हुआ है, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट. क्योंकि हम गारंटी कब दे दें कि अगर ये पे नहीं करेगा तो आई गारंटी यू, इसकी जगह मैं आपको पे करूंगा. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तभी कमेंस होगा, श्योरिटी तभी इनटू द पिक्चर आएगा जब क्या हुआ है? डिफॉल्ट किया है ऑन द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. और इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल डेटर हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन. जो उसको करना चाहिए था वो उसने नहीं किया. पैसा लौटाना था, लोन वापस देना था, गुड्स लौटानी थी, उसने नहीं किया, तो उसकी जगह श्योरिटी को करना होगा. तो अगर फॉर इंस्टेंस प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो श्योरिटी इन एनी वे उसको क्या करना होगा? जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की बनती थी उतनी ही लाइबिलिटी श्योरिटी की भी बनती है. तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है जॉइंट एंड सेवरल का कि अब क्रेडिटर क्या कर सकता है? या तो दोनों को जॉइंटली स्यू कर सकता है. क्रेडिटर कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ विद इन 3 years, ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. टाइम बहुत मैटर करता है गाइज. बिफोर 3 years ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और वो कोर्ट में जाके कह सकता है, दोनों को भी स्यू कर सकते हैं. ही कैन ईदर, क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन है गाइज, क्रेडिटर में मीन्स उसकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि ही में ईदर स्यू the principal debtor or surety or both of them. When I say he may either sue
प्रिंसिपल डेटर और फेवर्ड डेटर विच इज श्योरिटी, तो उसका मतलब है देयर लायबिलिटी इज सेवरल। सेवरल का मतलब है ईदर दिस पर्सन और दैट पर्सन। क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको स्यू करना चाहता है, ईदर प्रिंसिपल डेटर और आर फेवर्ड डेटर विच इज श्योरिटी, तो इसको बोलते हैं कि लायबिलिटी इज सेवरल, किसी से भी आप क्लेम कर सकते हो। लायबिलिटी इज जॉइंट मतलब आप दोनों के खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हो। तो हम ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं कि यू में ईदर स्यू प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी और बोथ ऑफ देम। इट मीन्स जब बोथ ऑफ देम की बात आती है तो क्रेडिटर ने उनकी लायबिलिटी जॉइंट कर दी, लेकिन अगर अब क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन है वो किसको स्यू करना चाहते हैं, दोनों को भी कर सकता है, वो प्रिंसिपल डेटर से भी क्लेम कर सकता है, वो श्योरिटी से भी क्लेम कर सकता है। तो इट मीन्स उनकी लायबिलिटी इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल। ये क्रेडिटर की डिस्क्रिप्शन है कि उसने किससे पैसा लेना है। तो को एक्सटेंसिव का मतलब होता है इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली द सेम, ऑन द सेम फुटिंग बट जॉइंट एंड सेवरल, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिटर कि उसने किससे पैसा क्लेम करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज creditor is not bound to exhaust all his remedies against principal debtor before suing surety. गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है को एक्सटेंसिव के लिए। इसके लिए विल बी डिस्कसिंग अ केस लॉ। एक बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, ये केस लॉ आया था। इस केस में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोर्ट ने कहा था, एपेक्स कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम कहा था बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद में। जब ये अपील हुआ ना, केस बहुत बारी पहले ट्रायल कोर्ट में था, फिर ये पटना हाई कोर्ट में गया और उसके बाद एपेक्स कोर्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस पॉइंट को कहा था कि नीदर श्योरिटी नोर कोर्ट्स, कोई भी इंसान दे कैन नेवर इम्पोज क्रेडिटर, और उसको आप ये नहीं बोल सकते कि यू हैव टू एग्जॉस्ट ऑल योर रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट एंड देन यू कैन स्यू श्योरिटी। अब आपको कुछ नहीं समझ आएगा, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट केस। फैक्ट्स क्या थे गाइज? बेसिकली देयर वाज अ बैंक ऑफ बिहार, वो बैंक प्लेंटिफ बैंक था। बैंक ने क्या किया, दामोदर प्रसाद को कुछ लोन दिया, लेकिन अगेन लोन दिया तो उसने कहा कि मुझे गारंटी चाहिए। तो बैंक ने दामोदर प्रसाद को जब लोन दिया तो उसने क्या कहा कि आप एक गारंटी लेके आओ। दामोदर प्रसाद जाते हैं, पारसनाथ सिन्हा को अपना गारंटर खड़ा कर देते हैं एज अ श्योरिटी। इट मीन्स अब यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। और अगर दामोदर प्रसाद नहीं पैसा देंगे इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, तो जो आपके पारसनाथ सिन्हा हैं उनको क्या करना होगा, बैंक ऑफ बिहार को पैसा देना होगा। बट गाइज व्हाट हैपेंड इज दामोदर प्रसाद ही डिफॉल्टेड। बैंक ने फिर पैसा डिमांड किया पारसनाथ सिन्हा से, लेकिन इवन आफ्टर रिपीटेड डिमांड्स बाय द प्लेंटिफ बैंक, बैंक ऑफ बिहार, ना तो दामोदर प्रसाद ने पैसा दिया और ना ही पारसनाथ सिन्हा जो श्योरिटी थे उन्होंने पैसा दिया। इन दोनों की लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव, दोनों की लायबिलिटी बनती है। अब गाइज आई हैव टोल्ड यू बिफोर हैंड कि अब ये बैंक ऑफ बिहार जो यहाँ पे क्रेडिटर है जिसने पैसा दिया था, उसकी डिस्क्रिप्शन है कि उसको इनकी लायबिलिटी जॉइंट बनानी है या सेवरल बनानी है। ही में ईदर स्यू दामोदर प्रसाद और पारसनाथ सिन्हा और बोथ ऑफ देम। किसकी मर्जी रहेगी? क्रेडिटर की। इट इज शेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिटर कि वो किससे पैसा क्लेम करना चाहता है। तो कोर्ट ने कहा, यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कभी भी एक कोर्ट या फिर एक श्योरिटी क्रेडिटर पे कोई भी हम प्री कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते कि आपको पहले जो पैसा है वो क्लेम करना है डिफेंडेंट से, यानी कि प्रिंसिपल डेटर से, और उसके बाद आप श्योरिटी पे जा सकते हो। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स क्या होगा गाइज, देखो कई बार क्या होता है, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी भी रखी जाती है। सपोज आपने प्लेंटिफ बैंक ने पैसा दिया, किसको दिया? दामोदर प्रसाद को, और दामोदर प्रसाद की कुछ ज्वेलरी है जो अपने पास रख ली एज अ सिक्योरिटी, और एक एडिशनल सिक्योरिटी भी रखवाई विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ श्योरिटी। तो अपने पास दो सिक्योरिटीज हो जाती हैं। तो एक आपने ज्वेलरी रखवा ली दामोदर प्रसाद की, और एक एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे श्योरिटी को खड़ा कर दिया। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले क्रेडिटर किससे क्लेम करेगा। तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इनकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, यानी कि क्रेडिटर की मर्जी है कि वो पैसा किससे क्लेम करना चाहता है। वो उसकी गिरवी रखी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा लेना चाहता है, या वो प्रिंसिपल डेटर को क्लेम करना चाहता है, उससे क्लेम करना चाहता है, या फिर वो श्योरिटी से क्लेम करना चाहता है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिटर कि वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से क्लेम करेगा, प्रिंसिपल डेटर से क्लेम करेगा, या फिर वो श्योरिटी से क्लेम करेगा। इट मीन्स यू कैन नॉट डिक्टेट योर टर्म्स एंड कंडीशंस अपॉन अ क्रेडिटर, राइट। आप एक क्रेडिटर को नहीं बता सकते कि आपने किस इंसान से कब पैसा लेना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस प्रिंसिपल को, बेसिकली जॉइंट एंड सेवरल, इस टर्म को कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे। इन अ वे और द अदर यू विल बी कॉन्ट्रोडिक्टिंग इट, राइट। तो कोर्ट ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम
बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद, इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स अपॉन क्रेडिटर, क्रेडिटर को कोई नहीं बता सकता, श्योरिटी भी ये बोल नहीं सकता। अगर सपोज प्लेंटिफ बैंक श्योरिटी को बोलता है कि मैं आपसे क्लेम करना चाहता हूँ क्योंकि योर लायबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल एंड इट इज़ माई डिस्क्रिप्शन, मैं आपसे सेवरली लेना चाहता हूँ, तो श्योरिटी ये नहीं बोल सकता क्रेडिटर को कि सबसे पहले प्रिंसिपल डेटर से क्लेम करो, ठीक है, या उसकी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से क्लेम करो और फिर मेरे पास आना। समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि डिफॉल्ट होना जरूरी है, यानी कि विद इन जिस टाइम के विद इन क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा देना था उसने नहीं दिया एंड ही डिफॉल्टेड। डिफॉल्ट होना जरूरी है गाइज, इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, बट डिफॉल्ट होने के बाद व्हेन दिस पर्सन प्रिंसिपल डेटर हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो डिफॉल्ट हो चुका है। डिफॉल्ट होना इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तभी श्योरिटी विल स्टेप इन टू द पिक्चर। बट वंस डिफॉल्ट हो चुका है उसके बाद इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रेडिटर कि वो किससे क्लेम करना चाहता है। ना तो कोर्ट्स कोई भी प्री कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं क्रेडिटर से, और ना ही श्योरिटी जो है वो कंडीशन लगा सकता है क्रेडिटर पे कि आप पहले उससे लो, प्रिंसिपल डेटर से लो। क्योंकि गाइस अब आप एक चीज़ देखो, अगर कोर्ट्स ये बोल दें क्रेडिटर को कि सबसे पहले आपको पैसा लेना है प्रिंसिपल डेटर से, वो नहीं देगा तो उसकी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से लोगे, वहाँ से भी आपको नहीं मिलता। वंस यू हैव आप कह सकते हो यहाँ पे यू आर वंस यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल द रेमेडीज, जितनी भी रेमेडीज अवेलेबल है, प्रिंसिपल डेटर से नहीं मिल रहा, उसकी प्रॉपर्टी से नहीं मिल रहा, फिर आप श्योरिटी के पास जाओगे। अगर हम ऐसा करने लग गए, अगर हम क्रेडिटर को ये बोलने लग गए कि यू हैव टू एग्जॉस्ट ऑल योर अवेलेबल रेमेडीज, पहले वो सारी एग्जॉस्ट हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, कहीं से आपको पैसा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, फिर आप श्योरिटी के पास जाओगे। सो डू यू थिंक कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की कोई रेलेवेंस रहती है? अगर कोर्ट आपको बोलते हैं कि यू हैव टू पोस्टपोन योर रेमेडी ऑफ क्लेमिंग मनी फ्रॉम श्योरिटी, कब तक पोस्टपोन करनी पड़ेगी? जब तक you have not exhausted all your remedies against principal debtor and his mortgaged property। तो अगर कोर्ट उसको पोस्टपोन करने को बोलता है, सो डू यू थिंक कि क्रेडिटर की पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सेफ है? हिज पोजीशन विल बी मिजरेबल गाइज, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का रेलेवेंस ही नहीं रहेगा, सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट होना इज इंपॉर्टेंट। वंस डिफॉल्ट हैज टेकन प्लेस, वंस दिस प्रिंसिपल डेटर हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, उसके बाद क्रेडिटर इज फ्री, उसको कोई भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट नहीं कर सकता कि यू हैव टू टेक रिकॉर्स टू ऑल दिस थिंग्स। इट मीन्स नोबडी कैन डिक्टेट टर्म्स एंड नोबडी कैन टेल बेसिकली क्रेडिटर कि यू हैव टू टेक रिकॉर्स टू सो एंड सो थिंग्स बिफोर you go to surety, यानी कि you cannot dictate him, right? He has a lot many available remedies, बहुत सारी रेमेडीज हैं, but you cannot dictate him कि पहले आपको यहाँ पे जाना है फिर आपको वहाँ पे जाना है। ना श्योरिटी बोल सकता है और ना ही कोर्ट बोल सकता है, और अगर आप ऐसा करोगे you will be defeating the very essence of contract of guarantee, और वो चीज़ गलत होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियरली कहा था बैंक ऑफ बिहार वर्सेस दामोदर प्रसाद में। सो इट मीन्स इट इज़ द डिस्क्रिशन, कहने का मतलब क्या कि क्रेडिटर कैन इवन स्यू श्योरिटी ऑल अलोन, क्योंकि उसकी लायबिलिटी इज सेवरल, और इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्रेडिटर कैन स्यू द श्योरिटी ऑल अलोन। सिर्फ आप उसको भी स्यू कर सकते हो इवन विदाउट हिम प्लीडिंग प्रिंसिपल डेटर, इवन विदाउट स्यूइंग हिम, राइट? यू कैन स्यू श्योरिटी। इट मीन्स श्योरिटी ये नहीं कह सकता कि आप इसको डेफर्ड करो, डेफर्ड मतलब फ्यूचर में इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दो। आप श्योरिटी की लायबिलिटी इज इमीडिएट एंड साइमल्टेनियस गाइस, देन एंड देयर। जैसे ही उसको क्रेडिटर ने बोल दिया कि मैं आपसे पैसा क्लेम करना चाहता हूँ, श्योरिटी हैज़ टू गिव इट, क्योंकि उसके बाद श्योरिटी के पास रिकोर्स अवेलेबल है कि वो वापस से प्रिंसिपल डेटर से पैसा ले सकता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के जरिए से। आई होप आपको पता है, अगर आपने सेक्शन 126 देखा है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। सो गाइज आई होप यू आर गेटिंग इट कि कैसे श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है, इट इज श्योरिटी इज अ फेवर्ड डेटर, इज इट? तो उसकी लायबिलिटी इज इमीडिएट, इट इज साइमल्टेनियस, इट इज नॉट कॉन्टेंजेंट गाइस। कॉन्टेंजेंट मतलब क्या होती है? कंडीशनल नहीं है। कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये नहीं बोलता कि श्योरिटी की लायबिलिटी इज कॉन्टेंजेंट। कॉन्टेंजेंट मतलब इट इज नॉट कंडीशनल, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन कि पहले आप प्रिंसिपल डेटर से उसके मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से लो पैसा और फिर आप मेरे से लेना। इट मीन्स क्रेडिटर कैन इवन स्यू श्योरिटी ऑल अलोन इवन विदाउट इम्प्लीडिंग द प्रिंसिपल डेटर। वो उसकी मर्जी है, वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से लेना चाहता है, प्रिंसिपल डेटर से क्लेम करेगा या श्योरिटी से करेगा, जिससे भी वो करेगा ईदर जॉइंटली और सेवरली दे आर बाउंड बाय लॉ टू गिव दैट मनी टू हिम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जितना भी बनेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। उसके बाद गाइज लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉम्पोजिट डिक्री। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्पोजिट डिक्री का मतलब क्या होता है? कॉम्पोजिट मतलब जो चीज़ कंबाइंड होती है। गाइस डिक्री क्या होती है? कोर्ट की जजमेंट के बाद आती है। अब देखो क्या होगा गाइस, कई बार कोर्ट की डिक्री आती है क्रेडिटर के पास, क्रेडिटर की फेवर में आती है, क्रेडिटर को वो बोलते हैं कॉम्पोजिट डिक्री में। कोर्ट कहता है
कि आपके पास एक कॉम्पोजिट डिक्री है कि यू कैन अवेल योर रेमेडीज ईदर अगेंस्ट मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी और अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर और अगेंस्ट श्योरिटी। कोर्ट ने एक कॉम्पोजिट डिक्री बना के भेज दी और क्रेडिटर पे छोड़ दिया कि आपके पास एक कॉम्पोजिट डिक्री आपको मिल चुकी है। नाउ एज पर दैट डिक्री यू कैन अवेल, जो रिकोर्स है आपका, यू कैन अवेल योर रेमेडीज ईदर अगेंस्ट दिस। आपके पास 3 रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो कॉम्पोजिट डिक्री यही कहते हैं कि आपके पास 3 रेमेडीज अवेलेबल हैं। अब श्योरिटी की लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो अब आपकी मर्जी है, फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट एंड सेवरल प्रिंसिपल, इसको फॉलो करते हुए यू आर अ क्रेडिटर एंड यू आर एट डिस्क्रिशन कि आप जिस मर्जी से इस कॉम्पोजिट डिक्री में क्लेम कर सकते हो। कॉम्पोजिट डिक्री का मतलब है कि कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ काम है कि उसने डिक्री पास करनी है। कोर्ट आपको टर्म्स डिक्टेट नहीं करेगा क्रेडिटर को, ये क्रेडिटर की डिस्क्रिशन है। कोर्ट नहीं बताएगा कि सबसे पहले आप यहाँ से पैसा क्लेम करोगे फिर वहाँ से करोगे। इट मीन्स कि कोर्ट नहीं कहेगा कि यू हैव टू एग्जॉस्ट योर रेमेडीज। आपके पास 3 रेमेडीज अवेलेबल एंड यू कैन टेक रिकॉर्स टू एनी ऑफ दीज 3 अवेलेबल रेमेडीज। नोबडी इज गोइंग टू डिक्टेट हिज और हर टर्म्स। ना तो कोर्ट आपको डिक्टेट कर सकता है और ना ही आपको श्योरिटी बोल सकता है। जहाँ से मन करता है वहाँ से पैसा क्लेम कर सकते हो। तो कोर्ट का काम इज डिक्री भेजना। एक बार कॉम्पोजिट डिक्री आ चुकी है, कॉम्पोजिट मीन्स कंबाइंड डिक्री आ चुकी है, अब आप किसी से भी क्लेम कर सकते हो। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है कि बेसिकली नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी क्या होती है। हिज लायबिलिटी, श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लायबिलिटी वही विच इज एग्जिस्टेंट एंड विच इज इनफोर्सिबल, जो खत्म हो चुकी है उस लायबिलिटी की हम बात नहीं करेंगे। एंड को एक्सटेंसिव का मतलब जनरल मीनिंग होता है इट इज एग्जैक्टली द सेम, इट इज इक्विवेलेंट। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि को एक्सटेंसिव का मतलब है कि आपको जॉइंट एंड सेवरल है, ये डिस्क्रिशन है किसकी, क्रेडिटर की। एंड ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट रेलेवेंट एंड ईजी। एंड गाइज इसके अंदर एक और लास्ट लाइन आती है, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा होता है तो फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही नहीं होगा। कई बार कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा होता है कि अगर डिफॉल्ट किया प्रिंसिपल डेटर ने तो वहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी नहीं बनेगी। कई बार एक जनरल रूल है जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 128 का, इट इज द जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है कि श्योरिटीज लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। लेकिन अगर इससे उल्टा, इससे अपोजिट कुछ भी ऐसा लिखा गया है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, while this contract of guarantee was entered into with the consent of all the 3 parties to that contract of guarantee, फिर ये जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज द जनरल रूल। अगर इससे कुछ उल्टा लिखा है आपके कॉन्ट्रैक्ट में while you were entering into that contract of guarantee, राइट, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द 3 पीपल, फिर वहाँ पे ये जनरल रूल नहीं एप्लीकेबल। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वही रिटन फॉर्म में, उसी एक्सप्रेस्ड फॉर्म में वही चलेगा, लेकिन अदरवाइज दिस जनरल रूल इज टू बी फॉलोड। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में किस तरीके से नेचर होती है ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। इट इज को एक्सटेंसिव। सो सिर्फ और सिर्फ आपको को एक्सटेंसिव को समझना था। आई होप मैंने बहुत ईजिली आपको इस कॉन्सेप्ट को सेक्शन 128 को समझा दिया। सो गाइज फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून, आई विल बी कमिंग अप विद मेनी मोर वीडियोज ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इट इज क्वाइट अ लेंथी चैप्टर बट विल बी फिनिशिंग इट अप। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।